Okay, so we are going to start first advanced NCRT course. This is going to be at least 3 months course. Okay, I'm going to give you the details what we are going to cover in this course. And this course mostly I would try that the entire course can be done by me. But wherever I feel that I am not the right or I am not doing the justice to the course, say for example, I think that I'm not good in geography, then I can take help of the other teachers. But this basics, I think I can deal and I'll try to cover it by my own. Okay, so this would be by Nirav Da, that is myself. Okay, and if you have got any administrative issues, if you want to connect to anybody in the office, if you have got any difficulties, then you can contact on this number. And every one of you, please install Telegram today itself. Okay, and Telegram पे ये नीरव दा करके सर्च करो और ये चैनल आज के आज आप लोग को सबको ज्वाइन करना है क्योंकि इसमें आपको सारा कम्युनिकेशन यू कैन से हमारे क्लास के रिलेटेड मिलता है आर majorly the teaching language would be English and Hindi, right? So we will be taking in English and Hindi so that everybody understands because we have got students like Hashir who is joining from Kerala. Then we have got students like Rachna who is, I guess Rachna is from Andhra Pradesh, right? Okay, so we have got students from all over India, right? So we'll have to be mostly in Hindi and English, okay? And whenever you don't understand anything, please फील फ्री बिकॉज मेरा हमेशा फर्स्ट रूल याद रखना अगर कुछ समझता नहीं है आप क्वेश्चन पूछते हो इफ यू आस्क क्वेश्चन इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग right you might seem to be a fool whenever you are asking a question for that movement or that moment, right? But if you do not ask the question you might be the fool for your entire life. So please ask questions and according to me my experience जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाता है जो सबसे ज्यादा ईगरनेस दिखाता है सब चीजें लर्न करने के लिए यूजुअली दो स्टूडेंट्स become successful in UPSC. So I love eager students who are ready to know new things, right, Komal, Sarthak? So please ask questions. Okay, never be shy of asking questions. The more you ask questions, the more I would be interested in, you can say, interacting with you, teaching you, and we can, you can say, have good interactions, right? So first, let me introduce myself. I am founder director at HV Desai Competitive Examination Center. We are based in Pune, right? Those who have visited our infrastructure, they might be knowing it. Okay, I have been helping the civil service aspirants since the last 10 years. If you see my graduation, I have done the graduation, which is today called as BBA IB, right? And I have, you can say, also completed my MBA in finance and फाइनेंस एंड क्या किया है आईबी में एमबीए किया है नाउ इट हैज बीन लॉन्ग सो आई डोंट इवन रिमेंबर दैट राइट एंड आई हैव आल्सो डिलीवर्ड यू कैन से दिस सेशंस at this places on economics and you can follow me on the Telegram, Facebook, right? Or this is our office number. Anytime you have got any difficulty you can call here and you have to join the Telegram group, right? So now I think that everybody knows me, so we can move on and we can go towards our, you can say, जो agenda है आज के सेशन का उसकी तरफ हम जाएंगे. So first, let me all welcome you to the world of UPSC. Up till now, you must have seen the world of UPSC from outside. कैसे लगता है आपको UPSC का world? आपको सबको aspirations है, dreams है. You want to become IS officers. Somebody wants to become IFS officer. They want to represent India on the global scale. Somebody wants to become a revenue officer और उसको raid करना है. किसी किसी को dream होगा कि उसके पास क्या होना चाहिए तो वर्दी होना चाहिए उसके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड somebody wants to become IPS officer. So whatever your dream is, you want to clear an exam. This exam is conducted by UPSC. So UPSC is not the exam name, it is the body who is going to conduct the exam and it conducts the examination for civil services examination. और अगर ये एग्जामिनेशन आप क्लियर करते हो तो you would be qualified for more than 20 services out of which IS, IPS, IFS, IRS, right? So these are the very common, well-known services. But before you can say we dream, everybody in the society always tells us that you can say UPSC is the mother of all examination. बहुत ही difficult है, होगा नहीं होगा, एक eagerness होता है, एक anxiety होता है
कितना डिफिकल्ट एग्जाम है, मेरे से हुआ क्या, मैं इतना ब्रिलियंट हूँ या नहीं हूँ, राइट? सक्सेस रेट इज वेरी वेरी लो, देयर इज टू मच टू स्टडी। यूपीएससी मतलब आपको ऐसे लगता है कि पूरा आपका एक बिल्डिंग होगा, जिससे यू कैन से बुक्स का बिल्डिंग होगा। तो ये सब चीजें आपको अभी आपके मन में कहीं ना कहीं ये सब थॉट्स होंगे, राइट? कैन वी डू इट? डू यू हैव दिस काइंड ऑफ थॉट्स? यस, यस और नो? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। डू यू हैव दिस काइंड ऑफ, यू कैन से थिंग्स कि बाबा ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना डिफिकल्ट है, क्या है ये, राइट? सो प्रचिति, प्रथमेश, पूजा, हशीर, everybody is saying yes, right? Pranav is saying yes, so Muskan is saying yes. Yes, so first thing first, what I'll say, okay, UPSC is all about game about confidence, okay? And you should not have false confidence. You should not have false confidence. When can you have, Shrushti, good confidence? Okay, when you work hard. When you work hard. Okay, so in UPSC, I'll tell you a mantra to clear UPSC. I'll tell you a mantra to become successful in UPSC. One mantra which you never have to forget is consistency is the name of the game. क्या है यूपीएससी का मंत्र दोस्तों? व्हाट इज द मंत्र ऑफ यूपीएससी? कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम. द पर्सन हु इज गोइंग टू रिमेन कंसिस्टेंट डे इन डे आउट, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, जो टारगेट सेट किए हैं वो कंप्लीट करेगा, वो जो है ना, वो यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करने के सबसे ज्यादा चांसेस वो इंसान के होंगे. सो यूपीएससी इज, yes, you will require IQ, you will require IQ, intelligence require है, but I would define that basic level of intelligence is required, right? Plus you require a lot of emotional quotient. Emotional quotient मतलब क्या है? How you deal with your emotions. मतलब मुझे गुस्सा आ गया, मतलब मुझे you can say बोर हो रहा है, मतलब मुझे आज पढ़ाई का मूड नहीं है, मतलब मुझे you can say I'm not able to handle my emotions. I want to go with my friends. Are you understanding this? I also want to enjoy life. You are not able to control your emotions, and emotions are controlling you. Life में कैसा होना चाहिए? We should regulate our emotions, and emotions should not regulate us. But what is happening in reality? We are all, you can say, controlled by emotions. We are all controlled by emotions, right? आपने, अगर आपका दोस्त का फोन आ गया, उसका बर्थडे है, शादी है, आप इमीडिएटली, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप जा रहे हो, आप फॉरगेट कर रहे हो कि आपको यूपीएससी एक बड़ा ड्रीम है. द बिगर द ड्रीम माय फ्रेंड्स, द बिगर द सैक्रिफाइसेस यू हैव टू मेक. Sachin Tendulkar, the greatest batsman, okay, up till now which India has seen, now he must have made so much sacrifices. कितने सारे birthdays उसके बेटे का होगा, बेटी का होगा. He must not have ever attended those birthday parties, or he must not have been to the family functions. Why? He was practicing, he was playing cricket, he was representing India. You must have known the famous incident where his father, you can say, passed away, right? He just went, and India was playing World Cup. He just went for one day, attended the funeral, did not even wait there. Immediately, you can say, he again came back to England, and the next match he played, my friends, he scored a century. You must have also heard the recent example of Mohammad Siraj, right? What did he? What you can say he did? He did not even attended the funeral because there were this COVID restrictions, right? And they had to remain in the bubble. So if he had attended his father's funeral or the last rites, then he would not have got the opportunity to play for Team India, right? So these are the kind of sacrifices which you have to make if you want to dream big. जैसे मैंने अभी एक जन को बोला कि आपको अगर ककून में रहना है, just now you are all in your cocoon, right? If you want to remain in the cocoon, then you'll always remain that larva. You'll never become a butterfly. If you want to become a butterfly, you'll have to fight hard, you'll have to struggle hard, and then you can say you have to come out of that cocoon, you have to struggle, and then when you come out of that cocoon, the struggle in which you can say you go through, that makes your wings very very strong. And once your wings are strong, only then you can fly, and only then you can achieve your dreams, and only then you can be successful in life. So हम ये सेशन सबको कॉमन होगा दोस्तों, ये सेशन सब लोग अटेंड करेंगे, सबको ये सेशन कॉमन होगा, बट इसमें से कोई तो इंस्पिरेशन लेगा, कोई तो मन पे लेगा चीज कि नहीं सर जो बोल रहे हैं मुझे अचीव करना है. तो मोटिवेट तो सब लोग हो जाएंगे 2 दिन के लिए, बट रियल मोटिवेशन क्या है? सेल्फ मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन, कि नहीं सर ने जो फंडा दिया है,
कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम. सर जो बोल रहे हैं कि हमको सबको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, सर जो बोल रहे हैं कि देयर इज नो यू कैन से अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, ये सब हम करेंगे और ये सब इंप्लीमेंट करेंगे. सो दिस everybody wants to do it, but the person who is going to implement it, right? ये सबका बॉटम में क्या आता है? Dreams. Everybody has dreams, but who achieves the dreams? Those who take action. Always remember. सिर्फ ख्वाबी पुलाव मत पकाओ कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा पढ़ाई करेंगे इतने साल करेंगे, ये सबसे कुछ नहीं होगा. जो एक्शन लेगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा, वो ही जीतने वाला है. I'll come to the library, sir, but after 2 days. I would start studies, but after 15 days. All this is in, you can say, air. There is no surety to it. Who is going to succeed? Who is going to take action? Always remember this. Are you understanding this? So UPSC difficult क्यों बनता है दोस्तों? Because people who come here, they only dream. They don't take action. When they take action, they might not have the strategy. They might not have the best of mentorship. Are you understanding? They might not have consistency. They might not have self-belief. Are you understanding? When all this comes together, and at Niravda, at HVD CEC, okay, what is my dream? My dream is I want to make 100 class 1 officers. 100 class 1 officers मुझे बनाने हैं. ये मेरा लाइफ का अभी का ड्रीम है, ये मेरा लाइफ का टारगेट है, और उसके लिए मैं यू कैन से दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हूँ. जिस दिन ये 100 ऑफिसर्स बन गए, आई माइट यू कैन से इफ I am motivated enough, I might continue, or I'll just shut down whatever I'm doing, and I have other dream which I'll tell you in the course of the you can say time. But just now is 100 class 1 officers बनाने हैं. और कैसे बनाने हैं 100 class 1 officers? One thing, they should be efficient. Efficient मतलब इतने जबरदस्त होने चाहिए कि जो उनको काम दिया हुआ है in the least possible resources, least possible time, in the most efficient way, वो काम उनको करने को आना चाहिए. And second is honesty. I don't want only honest officers. Honest है, but efficiency नहीं है, professionalism नहीं है, competency नहीं है. क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो. तो I want honest and efficient officers. अगर ये honest and efficient officers 100 बन गए और ये 100 districts में चले गए, okay, just imagine कि India would be such a better place to live. India would be such a better place because you know there is so much corruption in the system, there is so much difficulties in the system, right? I can give you so many examples where India is suffering because of its bureaucracy, right? तो आपको मैं आपको आज ये भी समझाऊंगा कि आप जो IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, जो ब्यूरोक्रेसी में आप आना चाहते हो, एग्जैक्टली व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा. बट बिफोर दैट, if you are ready to take action, if you are going to have strategy, proper strategy, this is my work. Strategy, mentorship, okay, concepts, ये सब मैं आपको दे दूंगा. But you should always be consistent, you should take action, and you should always have the self belief. Then you can become successful. UPSC में जो लोग आते हैं, 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं. ओके, पोस्ट कितने हैं? अराउंड 1000 पोस्ट होते हैं. बट ये 5 लाख में से ड्रीम करने वाले 5 लाख है, मैं बताऊंगा. इसमें से जो ये कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ओके, जो एक्शन ले रहे हैं, स्ट्रेटेजी है, दे मस्ट बी हार्डली 40,000 पीपल. हार्डली 40,000 पीपल. उसमें से भी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा है, ओके, यू कैन कम आउट बॉयल डाउन टू 10 to 15,000. और ये 10 to 15,000 ये हमारा रियल कंपटीशन. दिस इज अ रियल कंपटीशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड इसको हमको बीट करना है. देन वी कैन कम इन फर्स्ट 1000. व्हाई दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम? क्योंकि हमको फर्स्ट 1000 में आना है. कोई कट ऑफ है क्या इसमें? फिक्स कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है. हमको सिर्फ फर्स्ट 1000 में आना है. फर्स्ट 1000 में आया, हमारा रैंक आ गया, तो हमको क्या मिल गया दोस्तों? पोस्ट मिल गया. यस, आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपका यूपीएससी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या? यस, और डू यू फील दैट यू नो ऑल दिस थिंग्स? यस, are you getting benefited from all these things, right? Okay, so I just want you to have complete clarity. आप जब जो भी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ आपका फर्स्ट दिन है, तो स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट क्लैरिटी होना चाहिए. रचना, आर यू कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज? यस रचना, आर यू कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज? आर यू अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू यू कैन से communicate or interact with you? Okay, great, amazing, very nice. Okay, great. Okay, so this is this is about UPSC. This is what we have to understand. So why it is mother of all examination? Why it becomes the mother of all examination? Because most of the people dream, they don't take action, they don't have strategy. Why the success rate is low? Now you have understood this. Why you have to study so much? Because you again don't have proper strategy, you don't have proper mentorship, right?
Okay, many people ask me, sir, why you are called as Nirav Da? There is a purpose for this, my friends, right? Because I don't want you to see me as somebody who is, you can say, your teacher, okay, or somebody who is very senior to you. Okay, I am just like your elder brother who wants to help you. I don't claim that I know everything about UPSC. I don't claim that I am master of, you can say, many things. It is just that I have got greater experience. I am teaching or helping the aspirants of civil services since last 10 years. Many students or aspirants have cleared taking my advice and, you can say, doing courses with me, right? So I am a little more experienced. So I should be just like an elder brother. You should be able to approach to me anytime. If I am having that formal relationship with you like a teacher, you will be afraid of me. Yes or no? You should be afraid of me, but that afraid should, you can say that thing should be out of respect and not, you can say, your fear is leading to, you can say, distance, and that is why you are not communicating with me. Are you understanding this? There should be direct communication. You have any issues, you directly communicate so that, you can say, your time is not wasted. Never waste your time. As I always tell you in this UPSC journey, why we have started in March. Okay, most of the classes would start in June, July, right? Once they start in June, July, they would directly start with the syllabus. Okay, यूपीएससी एस्पिरेंट्स आपको समझेगा कि पहले 2 महीने आपको लग जाएंगे एडजस्ट करने के लिए. ओके, और ये 2 महीने चले गए तो आपका 2022 का अटेम्प्ट फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग अर्ली, सो दैट यू गेट यूज्ड टू इट. वी आर गोइंग टू गो स्लो इन द स्टार्ट सो दैट you understand what is, you can say, civil services, right? And then from June, July onwards, we are going to pick up pace. We are going to pick up pace. So there is a reason for everything what we are going to do in this course. Okay, and I just expect complete sincerity from you. I just expect, you can say, you are completely honestly here, not only physically here but mentally here, and I give you assignments. I expect that you do your assignments in time and you do your assignments daily. Yes, would you do that? Can I expect all these things from you? Yes or no? Hi, Anna. Okay. So Muskan says yes, Pooja says yes, Vishal says yes, Sai says yes, Harshita says yes, right? देखो, यूपीएससी जब भी स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत लोगों को जोश होता है. Okay, so attendance will keep on increasing till June as new students are going to join, right? But what is going to happen? You can say usually after Diwali, October, the attendance starts dipping. ओके, बिकॉज दे कैन नॉट कीप कंसिस्टेंसी. अभी जोश है, वो जोश मेंटेन नहीं कर पाते. तो हमको एक प्रॉमिस लेना है कि आज हमने जो स्टार्ट किया है, देयर वुड बी प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर जून में. नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स होगा. फर्स्ट संडे को हमारा क्या होगा? प्रीलिम्स होगा, राइट? ओके, फर्स्ट संडे ऑफ जून 2022, एंड ऑल दोज हु आर प्लानिंग फॉर 2022, दे शुड मेंटेन this consistency at least till June 2022, and after that also मेंटेन करना है, बट एटलीस्ट उधर तक तो आपको मेंटेन करना है, राइट? सो हैव यू गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट, यू कैन से रफ आइडिया अबाउट यूपीएससी? अंडरस्टैंडिंग हुआ है क्या आप लोगों को? यस और नो? नाउ यू कैन से लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. सो व्हाट विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, so in this pattern of examination we have got 3 stage examination. क्या है? पहला है प्रीलिम्स, इसको मैं बोलूंगा ये वनडे मैच है, ओडीआई क्रिकेट में. फिर हमारा मेंस है, ये टेस्ट मैच है, एंड द रियल मैच इज द टेस्ट मैच इन क्रिकेट. ओके, और ये पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसको आप इंटरव्यू के नाम से पहचानते हो, ये है 2020. ये है 2020. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और अगर ये तीनों फॉर्मेट में अगर हमने अच्छा कर दिया तो हम कहलाएंगे वी आर सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम, एंड वी वुड बी called as the one of the best cricketers in the country, right? So prelims में क्या है? Prelims में you have got 2 papers. Okay, in prelims you have got, you can say, 2 papers. One is GS, one is CSAT. GS मतलब क्या होता है? What is the full form of GS? Can anybody tell me what is the full form of GS? It is general studies. What are the components of general studies? Yes, there are 7 components. First is current affairs. So whatever is going on in the newspaper, current affairs. Second क्या है? हिस्ट्री है. थर्ड क्या है? ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा हमको, राइट? यस. फोर्थ क्या है? सो विल हैव टू स्टडी एनवायरमेंट. फिफ्थ क्या है? साइंस पढ़ना पड़ेगा.
6 क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, और 7 क्या 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 बच गया हमारा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा. सो दिस 7 कंपोनेंट्स हमको पढ़ने पड़ेंगे. और ये जो पेपर होगा इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे. ओके, ईच क्वेश्चन वुड हैव 2 मार्क्स, सो देयरफॉर टोटल 200 मार्क्स. ओके, व्हाट इज दिस सीसैट? ओके, दिस इज कॉल्ड एज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है मैथ्स, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इसमें होता है रीजनिंग. ओके, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सबको मैं एक इसमें डाल देता हूं. और डेटा इंटरप्रिटेशन. ओके, ये सबको एक में डाल देता हूं. और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विच इज 40% ऑफ द, यू कैन से दिस, एंड दिस माइट बी 40 to 45% ये होता है पेपर का. और ये दोनों मिलके बाकी का 55% पेपर का ये होता है, राइट? और अभी आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ओनली क्वालिफाइंग. मतलब क्या है, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं. ओके, इसके मार्क्स आपके फाइनल, इसके मार्क्स जो है, इट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड, डज नॉट डिसाइड वेदर यू क्लियर और नॉट. Whether you clear the prelims or not, it is not going to decide. You just have to score 33% marks. 33% marks के ऊपर है आपको, तो आपका जीएस का पेपर चेक किया जाएगा. Are you understanding? और जीएस आपका डिसाइड करता है आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे या नहीं करोगे. तो जीएस डिसाइड्स, दैट इज जनरल स्टडी डिसाइड्स. तो 200 में से पिछले साल हम बोल सकते हैं कट ऑफ कितना था, 98 अराउंड, जनरल कैटेगरी के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 50% के आसपास अराउंड कट ऑफ है. मतलब आपको मिनिमम 50% या यू कैन से सेफर साइड पे 55% आपको लाने हैं, तो आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे. आर यू विथ मी? प्रीलिम्स समझा है क्या? प्रीलिम्स के बारे में समझा है क्या सबको? एवरीबडी इन द क्लास, यस और नो, हाय या ना? एवरीबडी इन द क्लास? यस. सो मनिक इज देयर. मनिक, हैव यू अंडरस्टूड? आशुतोष, दृष्टि, हर्षिता, कोमल, मनाली, निखिल, परिमल, राहुल, रोहन पाटिल, साई, साक्षी, सार्थक, साइली तंबोली, इंद्रजीत, विशाल, सृष्टि, everybody understood? Okay, great. Any questions anybody has got for prelims? Any questions? Okay, should we go ahead? Should we go to the mains? Sarthak, you have got a question? Okay. Okay, I can see some people have raised the hand. Vishal, you have got a question? I can unmute you, Vishal. Manik, you have got a question? Yes, you can. I have unmuted you. You can ask the question. Manik, yes, please ask the question. Yeah, Vishal, no problem. If you are in the first year, no problem. Okay, I'll give you the strategy. आपको क्या करना है करके, विशाल. Okay, I'll give you the strategy. Don't worry. Your attempt would be 2022 में आप सेकेंड ईयर यू कैन से जाओगे. 23 would be your, say for example, अगर आपका 23 या 24 में अटेम्प्ट है तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके ओके, चलो. सो प्रीलिम्स एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड. अभी तो हम एनसीईआरटीज कर रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी तो अभी आपने कर ही लेने चाहिए. ओके, फर्स्ट ईयर में ही फाउंडेशन. नाउ लेट अस गो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीन्स. सो आप प्रीलिम्स क्लियर कर गए. से फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में आप इंडिया में फर्स्ट आ गए. इज इट इंपॉर्टेंट? या इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. बट यू हैव टू रिमेंबर, प्रीलिम्स में जो आपको जीएस में मार्क्स मिलते हैं, दे आर नॉट कैरी फॉरवर्ड. दे आर नॉट carried forward. Okay, in mains, which I called, it is a test match. You have got 9 papers. Again, first 2 papers are qualifying. That is, one is English, compulsory English, and regional language. इनके मार्क्स नहीं पकड़े जाते. Marks don't count, but you have to score 25%. But you have to score 25% in both of them. Okay, say English और आपने हिंदी ले लिया, किसी ने मराठी ले लिया, किसी ने तेलुगु ले लिया, किसी ने गुजराती ले लिया, whatever is your choice. Okay,
Now the rest 7 papers are important. First is essay, second is GS1, फिर GS2, 3, 4, ओके 5 पेपर हो गए आपके, और ऑप्शनल आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, ऑप्शनल पेपर 1 और वही ऑप्शनल के पेपर 2, मतलब एक ही सब्जेक्ट है आपको, यू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और वही सब्जेक्ट के ऊपर आपको 2 पेपर देने हैं. ईच ऑफ दिस 7 पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स. GS 1 2 3 4 में क्या है, जो मैंने आपको 7 कंपोनेंट्स बताए थे ना GS के, वही है, सिर्फ GS 4 में आपका क्या है, एथिक्स, एक अलग ही सब्जेक्ट है, दैट इज एथिक्स. GS 4 इज, यू कैन से अबाउट एथिक्स, राइट. एंड GS 1 2 3 में क्या है, all the 7 components. So it would have economics, it would have polity, it would have geography, it would have environment, it would have science, it would have current affairs, it would have, क्या बच गया है, तो जो भी बच गया है, तो ये सब यू कैन से होगा. और ऐसे में क्या है, आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको ऐसे डिटेल में लिखना है 1000 वर्ड्स में. समझ गया है? Have you understood how is the pattern of means? Everybody in the class, have you understood this? Yes or no? Hi या ना? Yes? Okay. Now, if each paper is of 250 marks and there are 7 papers, how much is the total marks for mains? Mains के लिए कितना total marks है? 1750. So 1750 is the total. Good, Muskan. 1750. Okay. Prelims. What is the mode of examination of prelims? What is the mode of examination, style of examination? It is MCQ. मतलब एक क्वेश्चन दिया है और 4 ऑप्शंस होंगे. मेंस में मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? इट इज ऑल आंसर राइटिंग. इट इज ऑल आंसर राइटिंग. दैट मीन्स अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो सिर्फ आपको नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं है. विथ नॉलेज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर आंसर राइटिंग स्किल. योर आंसर राइटिंग स्किल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, राइट. सो इसके लिए हम जब ये एनसीईआरटी स्टार्ट किया है, तो एनसीईआरटी में हम कंसेप्ट समझेंगे, कीवर्ड्स इसके समझ के लेंगे हम, प्लस हम आंसर राइटिंग भी अभी से स्टार्ट कर देंगे, ताकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो हम एक आंसर राइटिंग एक स्किल है. स्किल मतलब जैसे आपने वॉकिंग सीखा है, जैसे आपने साइकिलिंग सीखा है, जैसे आपने कार चलाना सीखा होगा, वो एक स्किल है. करते करते आप परफेक्ट बनते हो, वैसे हम आंसर राइटिंग का स्किल भी करते करते सीखेंगे, ताकि हम परफेक्ट उसमें बनना चालू हो जाए. क्यों मेंस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो 1750 मार्क्स है मेंस के, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं 1750 प्लस पर्सनालिटी टेस्ट में. कितने मार्क्स होते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में? यस, हाउ मेनी मार्क्स आर देयर फॉर पर्सनालिटी टेस्ट? कैन एनीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? Yes, Manali says 275. Exactly. So it is 275 marks. So 1750 plus 275, it is 2025. ये दोनों मार्क्स काउंट होते हैं. This 2 marks decides your final merit list. आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ये 2 मार्क डिसाइड करता है, आपका रैंक ये 2 मार्क्स डिसाइड करता है, आपका केडर ये 2 मार्क्स डिसाइड करता है. सब कुछ आपका सर्विस से लेके सब कुछ ये 2 यू कैन से मार्क्स डिसाइड करने वाले हैं. सो आउट ऑफ 2025 इफ यू सी हाउ मच इज मेंस 1075, तो अगर परसेंटेज में आप निकालोगे, ऑलमोस्ट इट बिकम्स 86 to 87%. सो 86 to 87% ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? किसके ऊपर डिपेंडेंट है बताओ मेरे दोस्तों? 86 to 87% of your success is depend upon what? It is depend upon mains. And mains is depend upon what, my friends? Mains किसके ऊपर dependent है? Mains is dependent upon your answer writing. Yes. So what is the most important skill required to clear UPSC? आज ही समझ के लो. It is the answer writing skill. It is answer writing skill. Are you understanding? Everybody is with me. Everybody understood the pattern of UPSC examination? Hi Anna. Okay, very good, right? So then once you have cleared the mains, तो देखो यहाँ पे 5 लाख लोग ये देंगे एग्जामिनेशन. उसमें से मैंने बताया आपको सीरियस कैंडिडेट कितने होंगे, मैक्सिमम 20 to 25,000. उसमें से 10,000 people would be called to give the mains examination, right? And then 3,000 would be called to give the interview, and 1,000 would be selected in the final list. 1,000 would be selected in the final list. रफली मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें, रफली मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ. और ये जो इंटरव्यू है पर्सनैलिटी टेस्ट,
दिस इज, इसका भी प्रिपरेशन हम कराते हैं, इसको भी एक प्रॉपर फेज वाइज प्रिपरेशन है, ओके, बट दैट इज नॉट योर वरी जस्ट नाउ. योर मेन वरी इज, you can say, how we are going to clear these two things, right? Now, right, strategy is very very important, and as I have told you, most important thing for a civil service UPSC aspirant, सबसे important thing क्या है पता है आपको? सबसे important thing, yes, उसके लिए सबसे important thing है daily schedule. ये फिक्स होना चाहिए दोस्तों. क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? ये फिक्स होना चाहिए. ऐसे आपको सबको आज डेली शेड्यूल बनाना है, डेली टाइम टेबल बनाना है, एवरीबडी, एंड जस्ट यू हैव टू फिक्स दिस दैट. और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कैसे फिक्स करना है आपको पता है? डेली शेड्यूल, डेली टाइम टेबल कैसे फिक्स करना है? डिसाइड द टाइम एट विच यू आर गोइंग टू स्लीप. अगर सोने का टाइम फिक्स कर दिया तो ऑटोमेटिकली द टाइम एट विच यू वेक अप वो फिक्स हो जाएगा. हम क्या करते हैं? वेकअप टाइम फिक्स करते हैं, बट अगर सोते लेट है तो वेकअप कर पाएंगे क्या जल्दी? विल बी एबल टू, यू कैन से, वेकअप अर्ली? नो, विल नॉट बी एबल टू वेकअप अर्ली. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो फर्स्ट फिक्स योर स्लीपिंग टाइम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, हमारा बॉडी को है ना एक मैकेनिकल क्लॉक के जैसे काम करता है, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जेट लैग. जेट लैग के बारे में किसने किसने सुना है? से फॉर एग्जांपल, इफ यू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, तो यूएसए में जब डे है तब इंडिया में नाइट होता है, राइट? तो हमारे बॉडी को जब वहां पे डे होगा तो हमारे बॉडी को नाइट का आदत होगा, तो हमको नींद आएगा, और रात में हमको वहां पे क्या होगा? रात में हम फ्रेश होंगे, राइट? वैसा चीज होता है कि आपके बॉडी में एक मैकेनिकल क्लॉक बैठ गया है. तो अगर वो आप फिक्स कर देते हो दैट, से you can say whatever is your time, I don't know, 11 p.m. I am going to sleep or 2 a.m. I am going to sleep, whatever that is, वो ही टाइम पे रोज सो जाओ. if 11 p.m. I am going to sleep, 6-7 hours of, you can say, नींद होना चाहिए अच्छे से. समझो 6 बजे भी आप उठते हो, 6 a.m., right? and then you do your little bit of yoga exercise, थोड़ा करना चाहिए, रोज करना चाहिए. सूर्य नमस्कार सब स्टार्ट कर दो, ब्रीदिंग थोड़ा, यू कैन से, प्राणायाम सब लोग स्टार्ट कर दो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब चीजें आपको बहुत, यू कैन से, लगेगा सर क्या बता रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल डू ओवर द मंथ ऑफ 6 months, ओवर द पीरियड ऑफ 6 months, उसके बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे, राइट? सो 6 a.m. अगर आप जागते हो, इवन इफ यू सिट एट टू स्टडी फॉर 8 a.m., नॉट अ प्रॉब्लम. 8 a.m. to, say for example, 11 a.m. is your first slot. After your breakfast you sit for 8 a.m. is your first slot. तो दुनिया को आग लग जाएगी तो भी आपको ये 3 घंटे पढ़ाई करना है, कंप्लीट फोकस करके पढ़ाई करना है. Then you take a break, say for example you want to do your lunch, again say for example you sit at 1 o'clock, no problem, आराम से चालू करो. एक से समझो आपने 4 पढ़ाई किया, 3 घंटा, अगेन दुनिया को आग लग गई, आप पढ़ाई करो. से 5 बजे हमारा सेशन है, फिर आपने ब्रेक ले लिया, 4 से 5 आप टी लेते हो, थोड़ा फ्रेश होते हो. 5 to 7 अगेन इज आर, से फॉर एग्जांपल, सेशन, राइट? आपने वापस, यू कैन से, आप पढ़ाई करने बैठते हो. 9 to 10 आप पढ़ाई करते हो, ओके, थोड़ा रिवीजन कर लेते हो इस टाइम पे सिर्फ वो. तो अगेन जस्ट स्टडी इन दिस टाइम पीरियड, एंड देन 10 ऑनवर्ड्स से अगेन यू डू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम पास, ये वो कर रहे हो, और 11 बजे आप सो रहे हो. ऐसा आपके स्लॉट्स फिक्स होने चाहिए. हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये स्लॉट्स, इट इज ऑल अबाउट हैबिट, इट इज ऑल अबाउट हैबिट. अगर बॉडी को हैबिट हो गया कि आप 12 बजे ही खाना खाने वाले हो, ओके, देन इट वुड परफॉर्म एट द ऑप्टिमम लेवल. नहीं तो क्या हो जाता है, अभी अगर आप रैंडमली चीजें कर रहे हो, ओके, टेल मी, हैव यू एक्सपीरियंस दिस? आप पढ़ाई करने बैठते हो, यू हैव सिट टू स्टडी and you feel sleepy. How many of you feel sleepy when we start studying? Please be honest, please write in the chat box. Or we feel hungry, we feel hungry. Are you understanding this? Be honest, yes or no? Yes or no? Ashir says, Muskan says, Sharik says yes. Afternoon, Drishti बोल रही है, रचना बोल रही है, right? Saili is there, Malika is there, right? Yes or no? कोमल is saying. तो इसके लिए बॉडी को हमको राइट मैसेज देना है कि आपको खाना, ब्रेकफास्ट जो है वो, whatever is your time, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, 8 a.m. को ही मिलेगा, तो 8 बजे ही भूख लगेगी बराबर. हम जागने वाले 6 a.m. को ही. तो अगर ये आप 21 डेज करोगे, ओके, एनीथिंग, इफ यू वांट टू फॉल इनटू अ हैबिट, यू हैव टू डू इट फॉर 21 डेज कंटिन्यूअसली, देन इट वुड बिकम अ हैबिट.
पहले 5-10 दिन, पहले 2 वीक बहुत डिफिकल्ट होगा, लगेगा सर क्या बता दिया, नहीं हो रहा है, ये पढ़ाई भी नहीं हो रही है, 3 घंटे आपने बोला, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो भी वही टेबल पे बैठे रहो, कुछ भी करो, वो टेबल पे सो जाओ, ऐसे ही सो जाओ, जस्ट स्लीप ऑन दैट टेबल, बट डोंट जस्ट, यू कैन से, जस्ट डोंट ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम दैट टेबल। ओके, तो ऐसे आपको ये प्रिपरेशन का आदत लगाना है। एक बार आदत लग गया ना, और उसको अगर फॉलो करना चालू कर दिया ना, तो अमेजिंग हो जाएगा। देखो, अभी आप यहाँ पे हो, यूपीएससी लेवल यहाँ पे है, राइट, अभी आपको बहुत टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, पढ़ाई नहीं हो रही है, अंडर कॉन्फिडेंस लग रहा है, बट जैसे आप आपका डेली शेड्यूल रोज फॉलो करने लगते हो, राइट, यू कैन आस्क मुस्कान, बिकॉज शी कम्स टू स्टडी हियर इन द लाइब्रेरी एचवी देसाई में, और यू कैन आस्क शारिक, शारिक पहले घर पे था, मुस्कान पहले घर पे थे, तो उनका पढ़ाई नहीं हो रहा था, यस मुस्कान कैन यू टेल अस नाउ, और शारिक कैन यू टेल अस नाउ, वंस दे स्टार्टेड कमिंग हियर, एक डेली शेड्यूल बनने लगा, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, उनका पढ़ाई अच्छे होने लगा, तो वो उनका लेवल बढ़ते बढ़ते जा रहा है, और उनको दिख रहा है कि यूपीएससी और उनका लेवल जो है वो कम कम हो रहा है, गैप जो है कम कम हो रहा है, एंड देन यू कैन से दे स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस, then they start getting, you can say, confidence, yes, once they start getting the confidence, then you can say they feel that, you can say, now we can complete, and we can not only compete, we can complete the syllabus, and now we are ready for the यूपीएससी। तो इसके लिए, और जिसको भी ऑप्शन है दोस्तों, अभी ये 14 मार्च तक गवर्नमेंट ने हमको परमिशन नहीं दिया है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टेक ऑनलाइन ऑफलाइन, वी आर ओनली गोइंग टू टेक ऑनलाइन, बट फ्रॉम 15th वी आर गोइंग टू टेक हाइब्रिड, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ में रहेगा। तो जितने भी लोगों को पॉसिबल है, पुणे में है अगर वो लोग, और या पुणे में आ सकते हैं, प्लीज कम एंड अटेंड ऑफलाइन सेशंस। और यहाँ पे लाइब्रेरी है हमारा, जो सुबह 6:30 AM से रात को 11 PM तक रहता है, और यहाँ पे आके पढ़ाई करो। मुस्कान was today telling me that when she came here to study, right, so she was sharing her experience कि हमको भी अगर उठने का मन कर रहा है, बट हमारे आजू बाजू वाले नहीं उठ रहे हैं, सो उनको कैसे लगेगा कि हम इतने बार उठ रहे हैं। So that is why we just kept on sitting on the same place, and that is how our stamina for studies improved, right? Almost 1,000 students are studying every day in our institute from morning 7 AM to evening 11 PM। तो ऐसे आपको पढ़ाई करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमने, we all have to be honest with ourselves, right? 10th स्टैंडर्ड के बाद हमने इतना डेडिकेटेडली कभी भी पढ़ाई नहीं किया है। इज इट ट्रू और फॉल्स? 10th स्टैंडर्ड के बाद हम सबको पंख आ जाते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, पढ़ाई, जो स्कॉलर, जो सिंसियर बच्चे होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पहले पढ़ाई चालू करेंगे एग्जाम के, राइट? और जो मेरे जैसे बच्चे होंगे वो तो बोलेंगे, अरे ये 10 दिन पढ़ के भी इसको इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं 1-2 दिन पहले चालू करूंगा एग्जाम के, राइट? और मेन स्टडी तो कब होता है? जस्ट 1 नाइट बिफोर द एग्जाम, यस और नो? जस्ट 1 नाइट बिफोर द एग्जाम, उसी दिन मेन पढ़ाई होता है। और हमारा इसके लिए पढ़ाई और हमारा जो नाता है, जो पढ़ाई और हमारा रिलेशन है, तो वो अभी बना नहीं है, तो उसके साथ हमको वापस दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करने के लिए वो हमको पहले ना ना बोलेगा, बट वी हैव टू स्टिक टू इट, we have to stick to it, we don't have to give up, we have to fall in a habit, and most important thing is, if you want to succeed, my friends, it is all about your daily schedule. Are you understanding? And what you keep is targets. अगर मेरा ये डेली शेड्यूल में 1 to 4 is my study hours, I have to keep targets. अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो कितने चैप्टर्स होने चाहिए, उतने चैप्टर्स होने के बाद ही आपको ब्रेक लेना है। एंड ऑल्सो रिवॉर्ड योरसेल्फ से, अगर आपका वीकली जो टारगेट है वो आपने अचीव कर लिया, तो संडेज को आप इंजॉय करो, यू कैन गो विथ योर फ्रेंड्स, you can go for a movie, you can go to a restaurant, you want to do anything, you can do on that Sunday. Are you understanding this? But you have to earn it. So that is why I call this as a professional approach. इसको मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों? इसको मैं बोलता हूँ एक प्रोफेशनल अप्रोच। जस्ट लाइक यू आर डूइंग अ जॉब, आप एक जॉब कर रहे हो, जॉब में कैसा होता है, 10 AM इज द पंच इन, एंड यू कैन से 5 PM समझो आपका पंच आउट है। तो वैसे आपको करना है कि वहां पे पंच इन करना ही पड़ेगा, नहीं तो सैलरी कट होगा, और जो भी टास्क दिए हैं वो करने ही पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव मेड अ डिसीजन। यू कुड हैव इजीली टेकन अ जॉब, जो यू कैन से ये कर रहे हैं, जो जो कॉलेजेस में भी है अभी, तो वो भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते थे, राइट? जिनका कॉलेज खत्म हो गया है वो भी यू कैन से कुछ दूसरा कर सकते थे। बट व्हेन यू हैव टेकन द यूपीएससी एज योर डिसीजन, दैट मींस यू आर गिविंग अप समथिंग, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गिविंग अप इज हाई। सो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स, ओके, ये सारे जो नोट्स है ना, वो थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ, आप लिखो, और ये सब रिवाइज करना। ओके, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा।
So first day onwards, what I'm trying to tell you is stop now considering yourself as students. आप खुद को स्टूडेंट के नजर से देखो मत. आप खुद को आज से ही जब आईने में देखोगे, जब सेल्फ इमेज आपका होगा, राइट, तो आपको खुद को कैसे देखना है, हाउ यू हैव टू सी योर सेल्फ, यू हैव टू सी योर सेल्फ एज अ ऑफिसर, अ क्लास 1 ऑफिसर, अ यूपीएससी जो जिसने क्लियर किया हुआ है, आईएएस बना है, आईपीएस बना है, जो भी आपका टारगेट है वो उसको वैसे आपको खुद को देखना है. वैसे अगर खुद को देखोगे तो ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे. तो क्यों सक्सेसफुल बन पाओगे? क्योंकि फिर आपका डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगा. अगर आप खुद को स्टूडेंट जैसे देखोगे तो स्टूडेंट क्या सोचता है, अरे थोड़ा आज ऑफ ले लेते हैं, अरे थोड़ा आज मूवी देख लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम के आते हैं, चलो ये नया होटल खुला है ये ट्राई करके आते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपका हमेशा ये ऐसा होगा. बट इफ यू सी योर सेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ ऑफिसर, तो आप हमेशा डिसीजन मेकिंग एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह से डिसीजन मेकिंग लोगे. और जब भी वैसे आप डिसीजन मेकिंग लेते हो तो यू कैन से आपका कंप्लीट जो दृष्टिकोण है लाइफ को देखने का चेंज हो जाता है. एंड व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? हाउ कैन यू डिफाइन लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट, इन द एंड लाइफ इज ऑल अबाउट द डिसीजंस यू मेक. ओके? और खुद के डिसीजंस खुद लेने हैं. ऐसा नहीं बोलना है नीरव सर ने बोला, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, बॉयफ्रेंड ने बोला, गर्लफ्रेंड ने बोला, वाइफ ने बोला, इसके लिए मैंने किया. तो फिर क्या हो जाता है, जब दूसरों ने बोला और आप करते हो ना, तो क्या हो जाता है, यू कैन इजीली ब्लेम अदर्स. अरे इसने बोला था, मम्मी ने बोला, मुझे ऐसा नहीं बनना, माई मदर इंसिस्टेड, दैट इज व्हाई आई डिड दिस कोर्स, राइट? देन whenever you fail you can easily blame, right? But when it is my decision that I want to give UPSC, when it is your decision and you can say आपको दिख रहा है कि ये डिफिकल्ट है, तो आप डबल हार्ड वर्क करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनीबडी टू ब्लेम. इट इज always, your decisions are not right or wrong, it is your actions which can make them right or wrong. डिसीजन तो ले लिया, बट उसके बाद जो आप करते हो उससे डिसीजन राइट और रॉन्ग होगा. आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस सेशन हेल्पिंग यू? इज दिस सेशन हेल्पिंग यू? या किसी को लगता होगा सर आप बहुत बोर कर रहे हो, थोड़ा यू कैन से इतना ज्यादा आप बोर मत करो, तो वो भी बोल सकते हो. यू हैव टू बी ऑनेस्ट, राइट? हाशिर बोल रहा है कि सर बहुत बोर कर रहे हो सर आप. हाशिर इज सेइंग यस सर यू आर बोरिंग. हाँ हाशिर. ओके, तू केरला में अभी तो ठीक है, सेफ है, तू आ जा पुणे, फिर हम देखेंगे तेरे को. Okay, some people have raised their hands. Do they have questions? Yes, Manik, Vishal, Arjun, do you have questions? Galaxy, who is Galaxy A30? Okay, so this is, so most important क्या है यूपीएससी में? Yes, what is most important? Following daily timetable. उसको फिक्स करो, उसको इंप्लीमेंट करो. पहले 21 डेज डिफिकल्ट होगा क्योंकि बॉडी न्यू रिदम को कोप अप करने के लिए, यू कैन से body would not want to cope up with the new rhythm, but if you have followed it for 21 days, no, you can say power on earth or nobody on earth can stop you from becoming IAS officer if you can do this. Clear? Now let me come to the strategy. How you are going to, you can say, keep the strategy for UPSC. Okay, please write in the chat box when is your attempt year. Those who are going to attempt for 2022, 23 और 24 वाले भी कोई है क्या? Yes, yes. Hashir is saying 22, Sharik is 22, Pranav is 23. Okay, Sai is 23, Harshita is 23, Anjali is 23, Vishal is only 24. एक विशाल है 24 वाला, Sahil is 22. Okay, Manali, Rishikesh. Okay, okay. So विशाल सिर्फ 24 का है. विशाल आप क्या करो ना, साउंड प्रॉब्लम सर. अर्जुन क्या प्रॉब्लम है? साउंड में प्रॉब्लम है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन वेरी वेरी क्लियरली और इज देयर एनी इशू? ओके, अर्जुन आपके साइड से ये होगा, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा अर्जुन, शायद से एक बार आप चेक कर लो. ओके, या हैव गुड इंटरनेट. ओके, सो today I am going to give you the strategy for 2022 and 23. Vishal, what I would request to you is, आप आज you can say
9:30 PM को कॉल करो ये नंबर पे. इंडिविजुअली आई वुड डिस्कस विथ यू द स्ट्रेटेजी फॉर 2024. विशाल को छोड़ के और किसी का 2024 का स्ट्रेटेजी है क्या? Anybody is going to give the attempt in 2024? विशाल को छोड़ के. Anybody else? Okay, no. So everybody is either of 2022 or 2023. So let me now give you the strategy for 2022 and 2023. What should be the, you can say, strategy for it. Now 2022 first. Okay. So 2022 अभी हमारा phase 1 चल रहा है. इसमें हम NCERTs करेंगे. Okay. NCERTs 2 लेवल पे आपका काम होगा. बलिका, when is your attempt? ओके, एनसीईआरटीज का दो लेवल पे हम काम करेंगे. ओके, एक बेसिक एनसीईआरटीज है जिसके मैंने सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं प्रीवियस बैच में. ओके मलिका, ग्रेट. ओके, तो ये 6 to 10th वाले एनसीईआरटीज है. दोज हु हैव नॉट सीन दिस एनसीईआरटीज, तो आज ही आपका फर्स्ट काम होगा कि आप अवधूत सर को कॉल करो. ओके, या फिर आप वो जो मैंने नंबर दिया हुआ है ऑफिस में वो कॉल करो और ये जो सेशंस है इनके लिंक्स ले लो. अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, मतलब आप सभी ने कंफर्म कर ही दिया है आपका, इसके लिए आपको लिंक मिला है. ओके, जस्ट शो योर रिसीट एंड टेक द लिंक्स. ओके, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा. इसके मैं टेस्ट लूंगा चाहिए तो आपके. ओके, ये आपको खुद लेना करना पड़ेगा रिकॉर्डेड सेशंस, एंड आई कैन ऑल्सो कीप डाउट सॉल्विंग इफ यू वांट, राइट. यहाँ पे लाइव लेक्चर्स हम कौन से लेने वाले हैं? 11th and 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज. और ये कब तक चलेगा हमारा? फेज 1 मार्च, अप्रैल, मई, इफ रिक्वायर्ड सम पार्ट ऑफ जून. सो 3.5 months ये हमारा फर्स्ट फेज चलेगा. इसमें हम क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? फाउंडेशन बिकम स्ट्रॉन्ग, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, वी लर्न आंसर राइटिंग कैसे करना है. ओके, एंड वी आर, हमारा एक वार्म अप हो जाता है फॉर द मेन फेज. This I am telling you the strategy for 2022. Any problems with the phase 1? 2022 वाले, any problems with the phase 1? Any problems? No. Okay. In phase 2, we are going to start with the mains syllabus, जो कि सबसे important है. यहाँ पे warm up हमारा खत्म हो जाएगा. We'll start running. This is going to be very very intensive course. बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डायरेक्टली सिलेबस लेंगे. GS 1, 2, 3, 4 सिलेबस कंप्लीट करेंगे. विल कंप्लीट द सिलेबस ऑफ GS 1, 2, 3, 4. हम यहाँ पे ऐसे राइटिंग का इंटेंसिव प्रोग्राम लेंगे. इस बार हमने स्टार्ट जल्दी किया है तो हमको भरपूर टाइम मिलेगा. लास्ट बार क्या हुआ था लॉकडाउन में? वी स्टार्टेड इन, मुस्कान हमने कब स्टार्ट किया था? अगस्त में. इसके लिए हमको बहुत कम टाइम मिला, राइट? जुलाई और अगस्त में काम चालू किया था ना. या सो वी गॉट वेरी लेस टाइम. जस्ट इमेजिन हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू गेट फॉर दिस बैच, राइट? ओके, तो हमको भरपूर टाइम मिलेगा और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए. ओके, तो ऐसे हम करेंगे. फिर ऑप्शनल यहाँ पे हमको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा. हमको यहाँ पे एक ऑप्शनल सिलेक्ट करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ, ये कब स्टार्ट होगा? जून जुलाई से, चलो जुलाई पकड़ दो, टिल दिसंबर 2021 हमको एक ऑप्शनल करना पड़ेगा. ओके, फोर्थ हम क्या करेंगे? करंट अफेयर्स अभी करेंगे. फिफ्थ चीज क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमारे रेगुलर टेस्ट होंगे, दोनों सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. ओके, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड सिक्स्थ क्या होगा हमारा दिसंबर में मॉक मेंस होगा. मतलब नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करके आपको एक 15-20 दिन का रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा. एंड देन जैसे यूपीएससी कंडक्ट करता है मेन एग्जामिनेशन, वैसा यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा और आपको मॉक मेंस ये लिखना है. ओके, यू हैव टू राइट द मॉक मेंस so that you are prepared for the mains examination by the month of December. Am I making sense? Am I making sense? Yes or no? Okay, now 2023 के लिए अलग क्या है? फर्स्ट फेज सेम है, सेकेंड फेज भी, ओके, सेकेंड फेज भी जो है वो सेम है. सेकेंड फेज इज ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर फॉर 2023. Only thing which is going to be different for them, they would not do this optional now. बाकी सब करेंगे, वो जीएस पूरा पढ़ाई करेंगे, करंट अफेयर्स का भी पढ़ाई करेंगे, एसए का भी पढ़ाई करेंगे, रेगुलर टेस्ट भी देंगे, मॉक मेंस भी देंगे, बट ओनली
वो लोग ऑप्शनल पढ़ाई नहीं करेंगे। 2023 स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? यस, इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? ओके, फेज टू, फेज टू ऐसा होगा। देन वी विल गो टू फेज थ्री, we will go to the phase 3. This is prelims focused. January to June 2022, यहाँ पे दोनों 2022-23 वालों के लिए कॉमन होगा। वो लोग वापस क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे हमने एनसीईआरटीज में सारा जीएस पढ़ लिया, 11-12 की एनसीईआरटीज कर लिए, यहाँ पे भी जीएस पढ़ लिया, यहाँ पे वापस हम जीएस करेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। और दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे? सीसैट। और सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे? अभी हमने जो यहाँ पे जीएस पढ़ा है, यहाँ पे भी जीएस पढ़ा है, यहाँ पे हमने जीएस क्या पढ़ा? कंसेप्ट समझने के लिए। यहाँ पे हमने जीएस क्या पढ़ा? कंसेप्ट समझने के लिए, प्लस उसके ऊपर आंसर राइटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे डेली आपका आंसर राइटिंग होगा। यहाँ पे एक चीज में लिखना रह गया मेरे से, यू विल हैव डेली आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे हमने जीएस पढ़ा और उसका आंसर राइटिंग में कैसे एप्लीकेशन करना है वो हमने सीखा। यहाँ पे हम जब जीएस पढ़ेंगे तो उसका एप्लीकेशन एमसीक्यू सॉल्विंग कैसे करना है वो हम सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल शारिक हैज गिवन सम टेस्ट और यू कैन से मुस्कान हैज गिवन सम टेस्ट, सो आई टीच यू द एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक, राइट? शारिक को पता होगा वो कैसे एमसीक्यू सॉल्विंग, थोड़ा थोड़ा उसको आइडिया आया होगा, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि एमसीक्यू एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करने हैं ताकि हम प्रीलिम्स क्लियर कर पाए। तो हमारे लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगा, हमारे लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगा। 2022 वाले फिर जून में उनका प्रीलिम्स का अटेम्प्ट देंगे। देन मेन देखो, सब कोचिंग आपको यहाँ तक प्रिपेयर कराते हैं, ओके, बट मेन कैच क्या है? यहाँ पे हमारा बैच खत्म हो जाएगा। मेन अगर यूपीएससी क्लियर करना है, व्हाट इज द मेन कैच? प्रीलिम्स, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप है, दैट इज ओनली 100 डेज माय फ्रेंड्स। सो इन 100 डेज मेंस के जो 7 पेपर है प्लस 2 क्वालिफाइंग पेपर है, 1750 मार्क का प्रिपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दैट इज व्हाई वी हैव कंप्लीटेड, हमने मेंस इसके लिए कब कंप्लीट करके रखा है? व्हेन हैव वी कंप्लीटेड द मेंस? हमने कब कंप्लीट करके रखा है मेंस? व्हेन हैव वी कंप्लीटेड द मेंस? इन डिसंबर इटसेल्फ, इन डिसंबर इटसेल्फ। सो दैट यहाँ पे हम ये 100 डेज में क्या करेंगे? विल रिवाइज, we'll do maximum answer writing practice and we would update our current, okay, and then we would give the attempt in 2022 वाले के लिए बोल रहा हूँ, 2022 वाले के लिए attempt सितंबर में देंगे and from October और November they start preparing for the interview. 2022 वाले everything is clear, 100% clarity है कैसे हम काम करने वाले हैं? Yes or no? Everybody in the class, please write in the chat box so that I know that you are having clarity. Okay, great. जो मेरे साथ पिछले साल से है, ओके, जिसने बैच किया हुआ है, वो जो है इस साल जून से दिसंबर क्या करेंगे? ऑप्शनल और मैक्सिमम आंसर राइटिंग, इसका टेस्ट सीरीज करोगे आप, ओके, दैट आई विल डील विथ यू इंडिविजुअली, राइट? अभी 2023 वाले जून 2022 तक उनके लिए कॉमन है, ओके, कॉमन, एवरीथिंग दे हैव टू डू एक्सेप्ट ऑप्शनल। आगे का बता दो, अभी वो क्या करेंगे? फ्रॉम जून टू दिसंबर 2022 they would first do now optional. They don't have to just study, they have to understand it, they have to make notes of it, and they have to also do answer writing practice in detail, okay. सेकेंड चीज, उन्होंने जो पिछले साल जीएस मेंस का पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज करना है और उसके ऊपर आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज करना है, आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज करना है। दिस इज व्हाट दे हैव टू डू एंड दे हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग देयर करंट, okay, they get more time, better it is, okay, so that we can conquer it. Then what they will do from January or February to June 2023, they would focus on the prelims. Now again revise GS and solve a lot of test series and MCQ solving perfect करे और फिर जून में वो अटेम्प्ट देंगे। जब उनका सितंबर में मेंस होगा तो उन्होंने ऑलरेडी एक बार मेंस पहले ही
कर दिया होगा 2021 में इस बार मेंस, फिर 2022 में भी उन्होंने मेंस किया है, सो दे आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस। हैव यू अंडरस्टूड 2023 वाले अटेम्प्ट वाले क्लैरिटी आया है क्या? कैसे होगा, क्लैरिटी आया क्या 2023 अटेम्प्ट, हाँ या ना? एवरीबडी इन द क्लास। 24 वाले विशाल जो है उसके साथ मैं आज बात करूंगा, उसको बताऊंगा उसको क्या करना है, राइट? आई विल हैव अ टॉक विद विशाल, नो वरीज अबाउट इट। Okay, so everybody have got complete clarity how our strategy is going to be? Yes or no? Yes or no? Everybody in the class? Everybody in the class? Okay, great, 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 amazing. Right now we have got the right strategy. We have got the right strategy. Okay, strategy से क्या होता है? right strategy से देखो, यूपीएससी लोग क्यों बोलते हैं डिफिकल्ट है? Shrushti, no problem. You can also give me a call. You give me a call at 10 p.m. I'll have a talk with you, Shrushti. Okay? मैं आपसे बात करूंगा. So, why people say it is difficult? Because the syllabus is vast. Nothing is rocket science. Rocket science में कुछ भी नहीं है. Syllabus is vast. Therefore, हमको अगर टाइम मिल जाता है अच्छे से, तो हम उसको क्या करते हैं? प्रॉपर स्ट्रेटेजी से डिवाइड एंड रूल. तो सिलेबस को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. वी जस्ट डिवाइड द सिलेबस इनटू कंपोनेंट्स. वी ब्रेक इट and we just focus on one component. We master that component. We master this component. Master this component. Master this component, and the entire picture falls in place. Are you understanding? That is why we are going step by step with proper strategy. You have to trust. अगर मेरा क्लास आप लगा रहे हो तो आपको मुझे completely trust करना है, और मैं जो जब बताऊंगा तभी ही वो ही आपको properly करना है. Okay, so you just have to trust the strategy. सेकेंड थिंग, इसमें और एक चीज क्या है, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओके, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, यस यू हैव टू कीप कंसिस्टेंसी, बट यूपीएससी इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग योर प्रॉब्लम्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील दैट, और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फील दैट उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू है. मुझे भी हेल्थ इशू है. अगर मैंने मेरा हेल्थ इशू आप लोगों को रिवील किया तो आप बोलोगे सर हाउ आर यू सर्वाइविंग, राइट? सो हेल्थ इशू आई ऑल्सो हैव. एवरीबडी वुड हैव अ फैमिली इशू. Some people might have economic issue, but यूपीएससी का जो एग्जाम लेवल है ना, ये यूपीएससी का एग्जाम लेवल है. आप यहाँ पे हो just because you might have health issue, you might have family issue, you might have economic issue. Would UPSC decline the bar for it? उसका जो बार है, ओके, उसका जो लेवल है यूपीएससी का, वो आपके लिए कम करेगा कि यूपीएससी? वुड इट रिड्यूस इट फॉर यू बिकॉज यू आर अ स्पेशल केस? नो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नो, नेवर. So that is why don't give reasons कि सर इसके वजह से मेरा हो नहीं रहा है. ओके, प्लीज डोंट गिव रीजंस फॉर यूपीएससी. एवरीथिंग कैटेगराइज व्हेन यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट. ओके, जस्ट कैटेगराइज. और इन लाइफ दिस इज माय फंडा. कैटेगराइज थिंग्स इनटू टू थिंग्स. थिंग्स यू कैन कंट्रोल and things you cannot control. Okay, say for example, if you don't have family support, or there are some family problems which are going on, some economic problems which are going on, are you understanding this? Or there are some health issues which are there, right? If you can control them, solve them. But many times I feel that because we are preparing for UPSC, we don't have the time and we don't have the expertise to solve so many problems. That is why just ignore these problems and just focus on your studies, because what you can control majorly is your studies. And if you can control your studies, then you are going to clear UPSC. Then you are going to clear UPSC. हमेशा याद रखना, whenever आपको कोई भी प्रॉब्लम सताता है कि ये क्या करूं मैं, कैन आई डू दिस, सो आप इतना याद रखो, आप सुपरमैन नहीं हो या सुपर वुमन नहीं हो. आप एक सर्वसाधारण इंसान हो. यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फिश. why you have to be selfish just now? Because if you achieve your goal, that is if you clear UPSC examination, आपके health problems होंगे, economic problems होंगे, family problems होंगे, most of them would automatically get solved. Do you agree to this or not? Do you agree to this or not? Yes or no, right? And secondly, always remember my friends, UPSC को किसके तरह देखो? just because I am a boy, that is why I'll give you this example. Just see UPSC as a girl, and girls should see UPSC as a boy, right?
अगर आप कॉलेज में हो तो आपको ये एनालॉजी समझेगा. इफ यू आर अ बॉय, यू गिव कंप्लीट डिवोशन. अगर आप कंप्लीट डिवोशन एक लड़की को देते हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग, उसको ये मानने के लिए रेडी करते हो कि यू आर एवरीथिंग फॉर मी and I don't even look to the other girls. Are you understanding this? I give you complete, you can say my focus, my life is completely dedicated to you. Then the girl might say, I'm not saying will say, the girl might say yes. Similar is UPSC. अगर आप यूपीएससी को कंप्लीट एनर्जी देते हो, कंप्लीट फोकस देते हो, बाकी कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ यूपीएससी पे आपका है, देन यूपीएससी माइट से यस टू. ओके, आप सोच रहे हो मैं यूपीएससी पे फोकस कर रहा हूँ, मैं बाकी का भी थोड़ा कर ले, मैं एमपीएससी भी कर लेता हूँ, स्टेट सर्विसेज भी थोड़ा कर लेता हूँ, मैं थोड़ा दूसरा भी चीजें करता हूँ, और यूपीएससी को लगता है कि ये भाई मेरे पे फोकस ही नहीं कर रहा है, तो आपको वो कभी भी हाँ नहीं बोलेगा. समझे आपको? सो कंप्लीट डिवोशन होना चाहिए. इसको दूसरा एनालॉजी है भक्ति. भक्ति मूवमेंट से हमारे जो विवेकानंद है, या फिर तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर है, ऑल दीज आर ग्रेट भक्ति सेंट्स, राइट? दे हैड कंप्लीट डिवोशन इन गॉड, कंप्लीट डिवोशन. हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? हमारे सेल्फिश रीजन के पास, मुझे पास करा दे, मुझे पैसा दिला दे, मुझे कपड़ा दिला दे, मुझे मकान दिला दे, गाड़ी दिला दे, राइट, मुझे गर्लफ्रेंड दिला दे. बट दे वेंट टू गॉड just because they love God. So you do UPSC just because you love UPSC. कंप्लीट डिवोशन होना चाहिए, कंप्लीट डिवोशन होना चाहिए. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिख के रखो किधर भी. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू स्टार्ट यूपीएससी, व्हाई यू स्टार्ट? बिकॉज यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर. बट व्हेन कैन यू बिकम आईएएस ऑफिसर? कब बन सकते हो? व्हेन यू फॉल इन लव विद द प्रोसेस. आई विल गिव यू एनालॉजी. आप जिम जाते हो, मोस्ट ऑफ देम गो टू द जिम. क्यों? आपको बॉडी बनाना है, राइट? बट जो जिम रेगुलरली करते हैं, दोज हु डू द जिम रेगुलरली और एक्सरसाइज रेगुलरली, कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, एक दिन अगर आपने प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं किया तो व्हाट डू यू फील? हाउ डू यू फील? You feel that something is missing in life. You feel that, you can say, there is something uneasy. Do you feel that? You feel incomplete? Yes, Pooja says incomplete, right? Yes, you feel that something. Yes, exactly. Why? Because you have started loving the process. Your focus is on the process. Your love is towards the process. The day you start loving the process of UPSC studying, जब आपको मजा आने लगेगा, when the day you start enjoying studies, then IAS would be a byproduct. Just like the day you start going enjoying exercise, body would be a byproduct. Are you understanding my concept? Are you understanding my concept? लोग मिस्टेक क्या करते हैं? What is the mistake they make while doing UPSC? They just focus always on the end product. That is, मुझे IAS बनना है. तो जब वो एंड पे हमेशा फोकस करते रहते हैं तो उनको स्ट्रेस डेवलप होता है कि मैं आईएएस बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बना तो क्या होगा. ओके, बट द डे यू फॉरगेट अबाउट आईएएस, यू जस्ट स्टार्ट फोकसिंग अपॉन स्टडीज एंड स्टार्ट एंजॉयिंग स्टडीज, दिस वुड बिकम अ बाय प्रोडक्ट. दिस वुड बिकम अ बाय प्रोडक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई विल गिव यू एन एनालॉजी. एनालॉजी में और एक देता हूं आपको. एक डॉक्टर है, वो दिन में रोज, यू कैन से, बहुत सारे सर्जरीज करता है, and he is reputed doctor, does the surgeries perfectly, and that is why he is of earned a great fame. But one day on the table of the surgery, he sees his son. His son is lying and he has to do a surgery, and if he does not do the surgery properly, the son might die. That day he thinks about the end result, कि बाबा अगर मैंने अच्छे से नहीं किया तो ये मर सकता है. And that day his hands start shaking. Otherwise his hands are, you can say, dead straight. His hands are stable as, you can say, a rock, and he performs the surgery very perfectly. But the day he thinks that what is going to happen to my son, at that day his hands start shaking. Are you understanding the analogy? Analogy समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? Yes. So this is what you have to understand.
दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यूपीएससी कौन क्लियर करेगा? जिस इसके लिए बोला कि क्वेश्चंस पूछो, ईगरनेस बताओ, कितने ईगर हो आप लर्न करने के लिए, कितना मजा आ रहा है आपको, हाउ मच यू आर एंजॉयिंग, राइट? सो नॉलेज, आपको एक यूरो का मूवमेंट, अरे मुझे ये पता नहीं था, मुझे आज ये समझा है, मुझे ये समझा है ऐसा आपको प्रोसेस में मजा आना चाहिए, ऐसा आपको प्रोसेस में मजा आना चाहिए, तो फिर यू कैन से यूपीएससी आप कर पाओगे। मनीक, मनीक, गैलेक्सी, दीपक, यू हैव क्वेश्चंस? यू हैव क्वेश्चंस? ओके, ग्रेट। व्हाट इज द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट? हमेशा आपके पास बैग होना चाहिए, आपका बैग में आपका सिलेबस होना चाहिए। जैसे कोई भी इंसान पहले उठकर क्या करता है, पूजा करता है, बाइबल पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, जो कुछ भी होगा, राइट, पूजा करेगा, वैसे एवरी डे यू हैव टू रीड योर सिलेबस, बिकॉज यूपीएससी इज कम्युनिकेटिंग विद अस थ्रू सिलेबस, थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड नोटिफिकेशन। सो अगर यूपीएससी, इफ यू वांट दैट यूपीएससी ने हमको हाँ बोलना है, अगर लड़की ने हमको हाँ बोलना चाहिए, तो उसके हमको देखना पड़ेगा ना कि लड़की के रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके, व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज शी वांट इन अ बॉय, तो यूपीएससी में वही है, ये रिक्वायरमेंट बताता है कि आप में क्या होना चाहिए। तो एवरी डे जस्ट रीड द सिलेबस। मेंस का जो सिलेबस है वो बाय हार्ट होना चाहिए। मुस्कान, मेंस का सिलेबस बाय हार्ट है क्या? शरीक, मेंस का सिलेबस बाय हार्ट है क्या? संतोष, मेंस का सिलेबस बाय हार्ट है क्या? यस है या नहीं है? अगर नहीं है तो यू कैन से आप यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, आप कुछ तो और कर रहे हो। ओके, बट लड़की को क्या चाहिए वो आपको पता नहीं। ओके, न्यूज़पेपर्स। ओके, अब भी देखो न्यूज़पेपर्स क्या करना है, अभी सिर्फ स्कैन करना है। ओके, आई विल एक्सप्लेन। न्यूज़पेपर का एक थ्योरी है, दिस इज अ पिरामिड, दिस इज अ पिरामिड, ये बेस है। बेस कैसे बनेगा पिरामिड से? जीएस। अभी हम एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, राइट? once we read this, then we can understand newspapers, then we can do better answer writing, ऐसे लिख सकते। तो this is application. So what is current affairs? Current affairs is nothing but application of basics. I can give you example. न्यूज़पेपर आपने आज खोला है, आप देख रहे हो फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो टू 9%। अभी फिस्कल डेफिसिट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट आपको फिस्कल डेफिसिट पता ही नहीं है, तो न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ फायदा हुआ क्या आपका? नहीं। तो अभी क्या करना है, जस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, जस्ट स्कैन द न्यूज़पेपर, ट्राई टू रीड। अगर नहीं समझता है तो भी पढ़ो, उससे वोकेबलरी बढ़ेगा, एक सेंस आएगा क्या चल रहा है। ओके, सेंस आएगा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, राइट? सो एवरी डे न्यूज़पेपर यू शुड बी रीडिंग। यस मुस्कान, आर यू रीडिंग इट? शारिक, पढ़ रहे हो क्या? एवरी डे गो थ्रू कर रहे हो क्या? स्कैन कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। करना चाहिए, राइट? सो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी कौन सा करना है? कोई भी, यू कैन से अंडू पांडू नहीं चलेगा, हिंदू या फिर एक्सप्रेस। स्टार्टिंग में जिसका इंग्लिश वीक है, ओके, जिसका इंग्लिश वीक है तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको लगेगा अरे क्या है ये, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। अरे कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, इंग्लिश इज द वर्ल्ड्स इजीएस्ट लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आज तक आपने इंग्लिश के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लिए हैं, इसके लिए आपको इंग्लिश डिफिकल्ट जा रहा है। अगर 2-3 महीने आप प्रॉपर एफर्ट्स लेते हो, इसमें से वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स निकालते हो, उसका बुक मेंटेन करते हो, वो बुक में वर्ड लिखते हो, डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग लिखते हो, एवरीडे रात को सोने से पहले रिवाइज करते हो, तो आपको समझेगा 3 महीने के बाद देखो आप मास्टर बनना चालू कर दोगे इंग्लिश। और एक चीज क्या करना है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सीरियल्स देखो, जैसे फ्रेंड्स, वो देख सकते हो विद सबटाइटल्स। दूसरा क्या कर सकते हो, द वॉल्यूम एट विच आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, रीड इंग्लिश एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर 2 मंथ। देखो इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, यू हैव टू वर्क हार्ड, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। इंस्टेंट सिर्फ मैगी नूडल्स बनते हैं 2 मिनट्स में, और इसके लिए वो भी बॉडी के लिए हानिकारक है, राइट? ओके, सो अगर आप 30 मिनट्स इफ यू रीड loudly at the volume which at the volume at which I am speaking with you, तो 30 मिनट्स ऐसे आप रीड करोगे loudly, okay, every day, then you see that what miracle would happen। miracle कैसे मिरेकल होगा? यू वुड स्टार्ट बिकमिंग वेरी वेरी फ्लुएंट इन कॉन्वर्जेशन इन इंग्लिश। ओके, हाउ दिस वुड हैपन? बिकॉज जस्ट नाउ
your ears are not used to listening you speaking in English. So whenever you try to speak or converse in English, immediately your brains give you the signal that something unusual is happening, and then you can see your confidence gets lost. So if you are going to read English in at this volume every day for 30 minutes, your tongue would automatically start turning for English. Your ears would automatically get comfortable listening to you in English, and you would be, you can say, having great confidence to converse with, you can say, people in English, because in the end interview you have to give it in English, right? ओके, फिर यू कैन से पीएम बख्शी, ये अब भी नहीं लेना है आपको, आगे मैं बताऊंगा। एटलास भी आप आगे अभी ले सकते हो एटलास, तो एनी गुड एटलास ऑक्सफोर्ड का, यू कैन से जो स्टूडेंट एटलास आता है वो ले सकते हो आप, या फिर यू कैन से जो ओरिएंट ब्लैक स्वॉन का एटलास ले सकते हो आप, राइट। तो ये कोई भी आप एक एटलास ले लो, और प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, मेंस के भी होने चाहिए और प्रीलिम्स के भी होने चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज हैव अ एक्टिव माइंड। मतलब ये सब है आपके पास, ओके, बट आपका माइंड जो है वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, ओके, वो सोच रहा है कि मैं काश मेरे दोस्तों के साथ अभी पिज्जा खाता, काश मैं अभी यहाँ पे ट्रैवल करता, तो नहीं चलेगा। एक्टिव मतलब क्या है कि योर फोकस है आपके पास। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज वेरी सिंपल थिंग। इफ यू डू दिस एवरी डे 20 minutes, miracles would happen in your life. What is that? Just focus on one thing for 15 minutes. Start with 5 minutes. The easiest way to focus on something is just focus on your breathing. For when I'll take, you can say, start with the offline classes, I'll start with your meditation also before the class, okay? So ये आपको करने को आना चाहिए, okay? Any questions up till now? बहुत heavy हो रहा है क्या? Is it very very heavy, or are you finding this useful? रोहन, साई, संतोष, शारिक, विशाल? Yes. Okay. 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 Very good. Now let us go towards our optional. Okay. तो जो नए बच्चे हैं वो मार्च अप्रैल मई में क्या करेंगे? So what would they do? They would, you can say, they would start with the NCERTs. NCERTs में हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, then we are going to study history, right? So we will study polity, and if time permits I'll do एक साइकोलॉजी का भी NCERT हम कर लेंगे। so वो इतने सारे हम NCERT करेंगे, प्लस आपको यूपीएससी का बेटर नॉलेज आता रहेगा। सो बिफोर यू अटेंडेड दिस लेक्चर एंड आफ्टर नाउ दिस लेक्चर, डू यू फील दैट यू नो बेटर फॉर यूपीएससी? आपको ज्यादा नॉलेज है यूपीएससी के बारे में, हाँ या ना? तो वैसे ही विद एवरी सेशन your understanding of UPSC would improve. Are you understanding this? Okay, and then in the month of June you will have to select your optional. You have to select your optional. For this we'll give you the guidance. We'll take your ऑप्शनल ओरिएंटेशन सेशंस, जैसे हम हर एक ऑप्शनल के ओरिएंटेशन लेंगे कि बाबा ये ऑप्शनल किसने लेना चाहिए, क्या होता है ऑप्शनल में, सिलेबस क्या है, रिजल्ट्स क्या है, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, ओके, एंड जो सर या मैडम पढ़ाने वाले उनका स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, राइट? ओके, सो दैट वी विल टेल यू। सो ऑप्शनल का आप भी चिंता मत करो, आपको जून में सिलेक्ट करना है। अभी अगर आपने दिमाग में कोई एक चीज ऑप्शनल रखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू टेक दिस एज माई ऑप्शनल, तो वो अभी यू कैन से थोड़ा उसके लिए फ्लेक्सिबल रहो, राइट? यू डोंट नो द थिंग्स एंड यू हैव टेकन द डिसीजन, बट व्हेन यू कम इनसाइड द सिस्टम, यू सी एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन इट वुड बी, यू कैन से, अ राइट, यू कैन से, थिंग टू टेक योर, मतलब तब एक राइट, यू कैन से, आप पोजीशन पे होगे आपका सही डिसीजन लेने के लिए। तो अभी थोड़ा रिलैक्स कर दो, ऑप्शन के लिए इतना जरूरी नहीं है, राइट? सम लाइफ winning mantras which I've already told you, it should be your decision, so that you can say decide to make it right or wrong. You should learn to enjoy the process, okay, and always believe in this philosophy of connecting the dots. Connecting the dots मतलब क्या है कि always my life का ये philosophy है, okay, what I, you can say, one, अगर मुझे पूछा कि इंडियंस में एक क्वालिटी क्या है जो हमको इंप्रूव करनी है, you will see most of the Indians, maximum, I'll not say all, I've never said all, maximum of the, you can say, Indians,
they are unhappy. They are unhappy about their current position. They are unhappy about their current work, current job, current business. Most of them, okay, they are unhappy. They want something, you can say, different. They want higher paid jobs, for example, right? But for this, they are not ready to work hard. हम work hard नहीं, हम थोड़े lazy हैं. Okay, so my philosophy of life is कि whatever I am, say I started my career as a teacher, okay, in a coaching class. Then I was hired by, you can say, MIT में मैं assistant professor था. Then I became a domain head. I never thought कि what is my salary. I never thought that what I'm going to get in return. My principle of life is always the same, that whatever I do, I want to give the best. I want to just give the best. I am going to do my best. So if you do that, that means you invest your time properly. You learn, you are always learning new skills. You are learning, you are having knowledge. And trust me, you can say, my friends, knowledge would never go waste in life. Knowledge would never go waste in life. So अगर आपने पूरे दिल से किया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं आगे ये आपके लाइफ में काम में आने वाला है. यू शुड जस्ट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइनिंग द डॉट्स. You do you know the story of Steve Jobs regarding this? Do you know the story of Steve Jobs? पता है क्या आपको स्टोरी क्या है कनेक्टिंग द डॉट्स वाला? Yes, do you know the story? हाँ या ना? No, Rohan says no. Okay, Drishti says no. Okay, Ashutosh says no. बाकी के लोगों को क्या है? Hashir says no, Rahul says no. Okay, okay. Should I tell you the story? Should I tell you the story? आपको जानना है स्टोरी क्या है? Okay. Prachiti does not want to know. Okay, हाँ. So I'll tell you the story. क्या है? See, Steve Jobs, when he was born, okay, his biological mother gave Steve Jobs, okay, so gave away to other parent, मतलब other couple को दे दिया. Okay, now the couple who adopted, you can say, adopted Steve Jobs, they were not that rich. Okay, और but Steve Jobs की जो biological, you can say, mother थी, she always had a dream. She did not have enough resources. That is why she gave up Steve Jobs, and she always had one dream, that why she is giving up, so that Steve Jobs can go to the university. ये उसने बोला था उसके पेरेंट्स को, adopted parents को. तो adopted parents were not that rich, but they accumulated all the resources so that Steve Jobs could go to the university and take education. So Steve Jobs गया कॉलेज ज्वाइन किया, राइट. बट स्टीव जॉब्स अंडरस्टूड कि बाबा उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, प्लस स्टीव जॉब्स को भी इंटरेस्ट नहीं आया कॉलेज में, तो उसने उसके पेरेंट्स के पास से पैसे लेना बंद कर दिया, एंड ही, यू कैन से, कैंसल्ड हिज एडमिशन. बट नाउ व्हाट टू डू? ही हैज कैंसल्ड द एडमिशन. सो ही यूज्ड टू स्टे एज अ पैरासाइट. पैरासाइट पता है ना, उसके दोस्तों के साथ उसके रूम में रहेगा वहां पे कॉलेज में, बट ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉलेज. Okay, he is not got the admission. Okay, but now what to do the whole day? He does not have the money. So what he used to do, he used to go and sit to the lectures or sessions which interested him. And do you know which lessons interested him? Steve Jobs was not at all a software guy. उसको software का कुछ नहीं आता था, हार्डवेयर का भी इतना नहीं आता था. उसको इंटरेस्ट आया कैलीग्राफी में. Do you know what is calligraphy? Calligraphy is writing, beautiful writing, right? How to write beautifully. तो उसके सेशंस अटेंड करता था. Okay, and he became a master of calligraphy. He became a master of calligraphy. उसकी इतनी सिचुएशन बुरी थी इकोनॉमिक, दैट स्टीव जॉब्स ने बोला है कि यू कैन से ओनली हिज फुल मील्स, मतलब वो पेट भर के कब खाता था? ओनली ऑन द वीकेंड्स. और वो भी वीकेंड्स पे क्यों पेट भर के खाता था? क्योंकि ऑन वीकेंड्स ही यूज्ड टू विजिट द इस्कॉन मंदिर, जो कृष्णा का मंदिर होता है ना इस्कॉन, वहां पे विजिट करता था और वहां पे फ्री वो खाना खाता था. ओके, सो इतना सिचुएशन बुरा था. Yeah, Hare Krishna, correct, Sai. So he learned calligraphy, and then you can say now connecting the dots. ये उसने ऐसा नहीं सोचा अरे मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट? जो भी कर रहा हूँ उसमें बेस्ट करना है मुझे. I want to become the best in that. Now he became the best in calligraphy. Now you can say fast forward,
ही एस्टेब्लिश्ड, आगे क्या हुआ वो सब स्टोरी मैं अब भी आपको नहीं बताऊंगा. उसने एप्पल एस्टेब्लिश किया. एप्पल वाज द फर्स्ट यू कैन से टू कम अप विद अ सॉफ्टवेयर. और एप्पल में एक यू कैन से, जैसे आप लोगों ने सबने वर्ड यूज किया होगा, एमएस वर्ड. तो एमएस वर्ड एक्चुअली बाद में आया. पहले एप्पल ने निकाला था पेज करके सॉफ्टवेयर, राइट? ओके, एंड इन दैट पेज he used his calligraphy knowledge and he brought this beautiful fonts. And then according to Steve Jobs, you can say ये जो हमारे ये है Bill Gates, he did nothing but he just copied this page into you can say Microsoft, and उसने उसको नाम दे दिया Word, और ये सारे fonts उसके कॉपी कर दिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कहाँ का उसका नॉलेज कहाँ पे काम में आ रहा है. एंड टुडे world is such a better place because we are using this different fonts, right, while writing in the you can say word or in the page if you are using the Apple, right? So connecting the dots, always believe in this principle. Life has something destiny for you. भगवान आपको डेस्टिनी अच्छा दिया हुआ है, बट भगवान आपको ऐसे नहीं देगा. टेस्ट कर रहा है कि आप ये सिचुएशन में क्या कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, कितना दिल जान लगा के आप यू कैन से वो सीख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मजे ले रहे हो उसमें. So that is very very important. So have you believe or will you now believe in the concept of connecting the dots? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay, great. Next is consistency is the name of the game. If you UPSC is not a 100 meters race कि बाबा आपने एक महीना 2 महीना पढ़ाई कर ली और आप क्लियर कर लोगे. आपको मिनिमम 14 to 15 months प्रीलिम्स के पहले पढ़ाई करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली. Then you have a chance to clear the prelims and then मेंस एंड देन इंटरव्यू. आप प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले क्लियर करोगे, चलो आप प्रीलिम्स क्लियर हो गए बाय चांस, आपका लक अच्छा था, प्रीलिम्स क्लियर हो गए. मेंस में क्या करोगे और क्या करोगे? इसमें तो बहुत पढ़ाई है, हो ही नहीं पाएगा आपका. और प्रीलिम्स क्लियर करके क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला. रियल एग्जाम इज मेंस, राइट? सो it is consistency. Consistency is the name of the game. It is not a 100 meters race, it is a marathon. It is a marathon, right? And remember my friends, life should not be taken for granted. हम क्या करते हैं, हम सोते हैं, हम उठते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, तो हमको ऐसे लगने लगता है कि लाइफ दिया है भगवान ने, चलते रहेगा. बट एक दिन ऐसा आएगा कि सुबह आपकी आंख खुली ही नहीं, आप मर गए. उस दिन आपको you can say when you die you should not feel bad that you did not do anything with this beautiful gift which the God has given to you, that is life. So don't take life for granted. Whoever has taken birth up till now has died. You and me are also going to die. We always feel, हमको लगता है ना ऐसा कि हम नहीं मरेंगे, दूसरे लोग मरते हैं. लगता है नहीं लगता है आपको? हाँ या ना? लगता ही नहीं लगता है हमको. But you can say I am going to die, you are going to die. That is the absolute truth in this world. So if we are going to die, we have got limited time, and if we have got limited time, let us make better decision making. Let us make better decisions so that we invest our times. ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मजा नहीं करेंगे. मजा करेंगे तो ऐसा मजा करेंगे, मूवी देखेंगे, धमाल करेंगे फ्रेंड्स के साथ कि भाई वी आर बेस्ट मजा ले रहे हैं. बट जब पढ़ाई करेंगे तो ऐसा पढ़ाई करेंगे कि हमारे जैसा दूसरा कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता है. तो ऑलवेज देयर शुड बी बैलेंस. Always there should be balance, middle path, as Gautam Buddha tells us. As Gautam Buddha tells us. Are you understanding this? Yes or no? Ha ya na? Ha ya na? Okay, great. Yes, golden mean. Okay. Are you comfortable? You can say. Are you comfortable attending online? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आप मेरे साथ नहीं हो? Or would you? Yes. Any problems are coming online? Any issues, or you are feeling comfortable? No issue. All good. No issue. Yeah. 6 to 10. Harshita, I'll come to that. I'll come to that, Harshita. Okay, great. Okay. Your experience is good for online. तो ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे. और एनीबडी वांट्स टू अटेंड ऑफलाइन? हु वांट्स टू अटेंड ऑफलाइन? कौन कौन अटेंड करना चाहता है ऑफलाइन? शारिक वांट्स टू अटेंड, हासिर, साई, मुस्कान, मनीषा, मनाली, दीपक, विशाल, प्रणव. ओके ग्रेट. सब हमारे ऑफलाइन वाले हैं. ओके आ जाओ. यस.
You can attend. Santosh does not want to attend offline. Santosh is comfortable online, I guess. So बहुत comfortable हो गया online. Okay, Santosh also wants to attend. Okay, now let us come to the work part. Now NCERTs आपको करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया. Okay, recorded sessions है 6 to 10th NCERT के. Start with history because I am going to start with 11th 12th standard history NCERT from tomorrow. Ancient से मैं start करूँगा. तो आपका काम क्या होना चाहिए, ये एंशिएंट का जो 6 स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी है उसके वीडियो देख आपने आज से देखना स्टार्ट कर देना चाहिए. यू शुड स्टार्ट वाचिंग इट फ्रॉम टुडे. यू हैव टू स्टार्ट वाचिंग इट फ्रॉम टुडे. ओके, एंड ओनली सिर्फ वीडियो नहीं देखना है आपको. ओके, आपको क्या करना है कि उसको रीड करना है. रीड भी कैसे करना है, चैप्टर 1 आपने रीड किया, यू कंप्लीट चैप्टर 1, अगेन रीड चैप्टर 1. सेकेंड टाइम रीड करोगे तो अच्छा अंडरस्टैंडिंग है. सो फर्स्ट सी द वीडियो ऑफ दैट चैप्टर, देन रीड द चैप्टर ट्वाइस. व्हाइल रीडिंग डोंट मेक एनी नोट्स. एक्टिव रीडिंग रखो. एक्टिव रीडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग से करो. आफ्टर 2 pages 3 pages 4 pages आस्क योरसेल्फ वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग. नहीं तो क्या हो जाता है, बच्चे पैसिव रीडिंग करते हैं. ओके, पैसिव रीडिंग करते हैं एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू इन यूपीएससी. दिन भर लाइब्रेरी में बैठेंगे, दिन भर पढ़ाई करेंगे, एक के बाद पेज चलते जा रहा है बट समझ में कुछ नहीं आ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और उनको क्या लगता है कि वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, तो ये पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है. एक्टिव रीडिंग होना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग से पढ़ो. ओके, सो रीड ईच चैप्टर ट्वाइस, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स का एक बुक बनाओ कि कौन से कीवर्ड्स है, नए नए वर्ड्स है. ओके, एंड आफ्टर दैट you tell me once you have done with history, once you have done with geography. Okay, तो we'll give you a test on 6 to 10th NCERT. यहाँ पे हम जो टेस्ट हम NCERTs करेंगे उसके तो टेस्ट लेंगे ही, बट जैसे जैसे आप कंप्लीट करते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी, I'll give you a test, और वो टेस्ट आप जब दोगे तो आपको एक फीडबैक मिलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो, ओके, और जो टेस्ट में आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट. Okay, so how to make most of the sessions? Take important notes whenever the lecture is going on. Assignments जो दूंगा वो आपको करने पड़ेंगे. जो assignments करता है वो clear करेगा. Okay, keep your NCERTs. अगर आप physical copy NCERT पढ़ने वाले हो तो आपके पास रखो, उसको underline करो, उधर ही notes बनाओ. Okay, if you have got any doubts, directly you can contact me. Okay, Facebook page नहीं, Telegram पे contact करो या फिर chat में ही immediately बताओ. Okay, and do not get into unnecessary debates. राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये सब यूपीएससी में नहीं पूछते हैं. एग्जाम ओरिएंटेड रहो. ओके, कोई भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की चीजों की जरूरत नहीं है. ओके, यूपीएससी में क्या है, लेंथ और ब्रेथ हमको करना है. हम एक ही इशू के, देखो ये हमको, ये अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हम यहाँ पे है एंड दिस इज आईएएस. हम अगर बहुत डेप्थ में चले जाएंगे तो विल नॉट बी एबल टू कवर द डिस्टेंस, राइट? सो विल नेवर बिकम आईएएस. तो हमेशा बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की चीजों की जरूरत नहीं है. वो आपको ऑटोमेटिकली विद द पीरियड ऑफ टाइम विद माय लेक्चर्स यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ मच डेप्थ इज रिक्वायर्ड. अभी कल से मैं स्टार्ट करूंगा व्हाई वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री, एंड देन आई वुड डायरेक्टली स्टार्ट विद द, यू कैन से 12th स्टैंडर्ड, ये जो थीम्स का एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, इससे मैं आपको स्टार्ट करूंगा. एंड आई वुड गिव यू द पीडीएफ ऑफ दिस पीपीटी आल्सो tomorrow, right? So if you want to read from this PPT, you can read it, or you can buy your physical copies also. Everybody, is the everything clear? All the instructions are clear? Hi Anna, everybody in the class? Yes? Okay, one more thing. Okay, आज मैं अभी क्या करता हूँ आपको, I'll just show you. Okay, so just go to Telegram. See, this is the Niravda channel. Okay, so around this Niravda channel is there. इसको आपको join करना है आज. Okay, you have to join this Niravda channel. Okay, other thing what you have to do is, ये देखो, ये Niravda यूपीएससी डिस्कशन फोरम करके ग्रुप है हमारा, वहां पे जाना है. एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू, देखो कितना सिंसियरिटी कौन करता है. आई वांट ईच वन ऑफ यू,
आपका लेक्चर होने के बाद आपने जो आज लेक्चर में सेशन में अगर कोई नोट्स बनाए हैं, ओके, रनिंग नोट्स बनाए हैं, तो यहाँ पे स्कैन करके, फोटो नहीं, स्कैन करके, ओके, से फॉर एग्जाम्पल मुस्कान और यू कैन संतोष, दे वुड अपलोड, तो उनको पता है तो ये अपलोड करेंगे. आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू अपलोड देयर स्कैन्ड नोट्स ऑन दिस चैनल. एवरीबडी कैन अपलोड ऑन दिस चैनल. सो आप यू कैन से ये चैनल पे अपलोड कर सकते हो, आप क्वेश्चन एक दूसरे के साथ पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो. ये इसके लिए चैनल बनाया है, यूपीएससी के चीजों के बारे में डिस्कशन करने के लिए. कोई भी इशू है, कुछ भी है, तो यहाँ पे ये राइट फोरम होगा डिस्कशन करने के लिए. So I want after the session everybody to upload their scanned notes on this. Yes, see, we can see that Manali has joined it, right? Okay, is it clear now? Anybody has got a question? If you have got a question, please message so that I can unmute you. Anybody has got a question? Deepak, have you got a question? Deepak? Yes, time यही रहेगा, क्लास का टाइम यही रहेगा. 4 PM or 5 PM would be the class timings. Anything else? Okay, Manisha, don't know how to make notes. No problem. Okay, जैसे जैसे बच्चे डालेंगे आप वो ग्रुप में फॉलो करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, और आपको ये मिलेगा. विशाल, अगर आपने क्लास लगाया है तो आपको एवरी डे व्हाट्सएप के ऊपर लिंक आ जाएगा. ओके, आपको लिंक आ जाएगा. एनसीईआरटी के भी जो नोट्स है आपको यहाँ पे ही मिलेंगे ऑन नीरव दा यूपीएससी डिस्कशन फोरम का जो ग्रुप है, मैंने आपको जो बताया वहां पे ये एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे. और आज का मैंने जो सारा डिस्कशन किया उसके भी नोट्स वहीं पे आपको मिल जाएंगे. ओके, डन. शुड वी एंड द सेशन? यस. वाज द सेशन फ्रूटफुल और डिड आई वेस्ट योर टाइम? वाज द सेशन फ्रूटफुल? सेशन वाज बेटर बोल रही है मनीषा. Okay. Yes, great. Okay, so I hope you all are now motivated. I hope you have complete energy. I hope you can say all of you become officers and help me achieve my dream. Please be regular, please be consistent, please work hard and go with the strategy and let us all work as a team. Okay, आप सब दोस्ती करो, टीम में काम करो. Okay, और ऐसा स्ट्रॉन्ग टीम बनाओ कि सब लोग एक साथ यूपीएससी क्लियर हो जाएंगे. Okay, that is what is our dream and that is what we have come together. Thank you for your patient learning. From tomorrow we'll be starting with the 12th standard NCERTs. Please start watching the 6th standard NCERT of history if you have not, you can say. और अगर आपने देखा है ऑलरेडी वो, तो आप वो हिस्ट्री का NCERT रिवाइज कर लो. ओके, हिस्ट्री का आप NCERT रिवाइज कर लो अगर आपने सेशन देखा है तो. और अगर आपको वापस भी देखना है तो भी आप देख सकते हो. ओके, दोज हु all have completed their fees, you will get the links for the same. So I'll ending it here. See you tomorrow. Okay, bye everyone. Bye.